Karamat presents gratitude to the hospitality industry. We are providing a platform where experienced leaders share their culinary journey with budding aspirants. A platform where experience meets execution. A platform where we put together collective efforts. A platform with a shared aim, reviving the hospitality industry from the challenges posed by the pandemic. Come, join us on this culinary journey. कुछ शेफ बॉर्न जीनियस होते हैं, कुछ अपनी मेहनत और लगन से जीनियस बनते हैं, पर इन सारे जीनियस में एक बात कॉमन है, ये खाना बड़ा लाजवाब बनाते हैं, जैसे कोई करामात हो इनके हाथों में। जी हाँ, ये करामात ही है शेफ के हाथों में। करामात मास्टर मिक्स फॉर मास्टर शेफ, 100% natural gravies and many more. So, Namaskar, good evening. This is Dr. Chef Varinder Singh Rana, and we are here on our show, Culinary Journey of a Chef. And I'm so honored and I'm so pleased to welcome our today's guest. And today's guest is very dynamic, passionate, with a lot of responsibilities, being a chef, also an author, also, and a consultant who is doing consultancy for all types of hospitality, and none other than Chef Vikas Chawla. So we have Chef Vikas Chawla with us on behalf of Karamat Food Solutions India Limited. I welcome you, Chef, on our show, Culinary Journey of a Chef. Welcome. Thank you so much. My pleasure. Yeah, so I also welcome our marketing head, Mr. Mayur. Mr. Mayur, Yes, welcome you also on this show. Thank you so much, sir. So, as I told it that our today's guest is founder, CEO of Core Hospitality Solutions. He is a chef, he is an author, and he is consultant for all types of hospitality. So, Chef Vikas, can you tell us something about your culinary journey? आपने कैसे शुरुआत की कि आपने होटल मैनेजमेंट के बारे में पहले सोचा और उसके बाद में कैसे इस प्रोफेशन में कंसल्टेंसी की तरफ चले गए आप? स्टार्टिंग में I have gone through your profile. You started with the restaurants and फिर आप उससे एकदम ही मूव होते होते बिल्कुल ही अलग डायरेक्शन में चले गए. तो can you tell something about your culinary journey? Sir, pleasure. Good evening both of you, and good evening all. My journey started not from IHM. It started from the age of 10 years approx, 9 or 10 years, when I was a child, you can say. I used to cook with my mother, and I was very much active on the platform where my mother used to cook. मतलब हमारी घर की जो कुकिंग रेंज है, तो मैं वहीं पे प्रेजेंट होता था जब भी खाना बनता था. हमें डांट बहुत पड़ती थी, तो हमें मार भी बहुत पड़ती थी कि हम खाना बना रहे हैं. मदर यूज्ड टू टेल मी कि मैं खाना बना रही हूँ, मेरे पास क्यों खड़े हो, मैं डिस्टर्ब हो रही. इवन देन आई यूज्ड टू स्टैंड देयर और हम सीखते थे. फिर मैं कोई क्वेश्चन करता था तब भी मुझे डांट पड़ जाती थी कि मैं जो बना रही हूँ, जस्ट वॉच इट वंस, डोंट आस्क एनी क्वेश्चन, और आप एक बारी में देख के सीख लो जो सीखना है. एट दैट टाइम ऑफ एज, एंड just because of my mom and the taste which I was getting, very authentic taste from my mom's hands, you can say. उनके हाथ में एक शफा थी, which I call in Hindi or whatever the language we use, shafa word. Shafa is again a quality, a particular quality of a specific dish or a specific cuisine. तो उनके हाथ में एक पंजाबी cuisine का बहुत अच्छा एक था. She was from Haryana, but my birth is in Chandigarh. So I learned everything from my mom, and I started from the age of 10 years. And second phase was when I used to visit religious functions with my dad, and I was spiritually involved with my dad, and I used to cook over there at langars also. आपको पता है कि गुरुद्वारास में और यहाँ पे लंगर का बहुत एक कल्चर है, बहुत अच्छा कल्चर है, जहाँ पे we learn lot of things. We learn seva and we learn cooking also. So I used to cook at langars also, again from the age of 12 to 16, 18, approx 5-6 years. I cooked very hard and for long hours at langars only. तो वहाँ से from that langars, there was a very good friend of mine. He is in London right now. His mama ji only recommended me कि you are very much interested in langars and you are cooking very well. Why don't you join this IHM hotel management? तो हमें उस समय होटल मैनेजमेंट का भी इतना नहीं पता होता था कि इंस्टीट्यूट भी होते हैं और ऐसी कुछ वहाँ पे डिग्री भी होती है. तो उन्होंने हमें रिकमेंड किया. देन आई
I applied here at CIHM, Chandigarh in 96. It was the first batch of this CIHM, जो अभी Chandigarh Institute of Hotel Management है. तो I joined the first batch IHM. तो IHM करने के बाद अब क्योंकि हम घर के पास में थे एंड कहते हैं ना हिंदी में पेरेंट्स के लाडले, तो हमें वो बाहर नहीं जाने दे रहे थे उस समय. तो और मेरे को क्या था कि आई वांटेड टू ज्वाइन इंटरनेशनल चेन. उस समय 96 में आपको याद होगा कि इंटरनेशनल चेन्स का बहुत ज्यादा एकदम इन हुआ था, लाइक पिज्जा हट, डोमिनोज, मैकडोनल्ड्स. मतलब दैट वाज द स्टार्ट इन 90 मिड. इट वाज द स्टार्ट ऑफ इंटरनेशनल चेन्स. तो आई जॉइन डोमिनोज पिज्जा एंड देयर इज अ वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट कि जब मैं डोमिनोज इंटरव्यू देने गया तो आई मिस्ड दैट पर्टिकुलर डेट व्हिच वाज फॉर द इंटरव्यू. तो आई मिस दैट डेट, बट फिर भी मैं चाहता था कि मैं डोमिनोज ज्वाइन करूं. तो नेक्स्ट डे आई अप्रोच्ड मैनेजर कि आई वांट टू ज्वाइन डोमिनोज पिज्जा. तो ही लाइक्ड माय इंटरव्यू एंड ऑल, बट देयर वाज नो वैकेंसी फॉर क्रू मेंबर और पिज्जा मेकिंग बॉय. तो दे टोल्ड मी कि विल अपॉइंट यू एज अ ड्राइवर, डू डिलीवरीज एंड पार्ट टाइम, मतलब आफ्टर योर जॉब यू कैन डू पिज्जा मेकिंग. अगर हम आपको पसंद करेंगे, इफ योर जॉब इज गुड, you will perform, then we'll select you as a crew member and you can promote it. So I joined there as a driver. I did home deliveries for pizza for 3 months in 97 from March till August approx. 3 महीने मैंने deliveries की. उसके बाद they saw my performance. So I was making pizzas over there and I did good records in making pizzas in 40 seconds, 45 seconds or so. And I was doing very good inventories over there in closing the stores. तो उस टाइम पे हमारी मेल्स भी नहीं चलती थी. आप यू कैन अंडरस्टैंड इन 96 में ईमेल कैसे चलती थी. हम जब अपने हेड ऑफिस में मेल भेजना स्टार्ट करते थे तो वो उसको जाने में 2-2.5 घंटे लगते थे. तो आई वाज डूइंग द शिफ्ट ऑफ 1 to close मींस 1 to 12 इन द नाइट. और आफ्टर क्लोजिंग आई यूज्ड टू मेल द हेड ऑफिस. वो मेल करनी होती थी, मेल जाती थी 2:30 से 3 बजे. तो हम सुबह 4 बजे घर पहुंचते. तो दैट वाज द स्टार्ट ऑफ माय culinary journey. उसके बाद again I left Domino's after 1.5 years and I joined hotels as a chef, but I worked there for 3 years. Then I moved to the general manager position. Someone saw my, maybe उन्होंने कुछ देखा, कुछ skills देखे, वो कहते यार as a GM भी आप handle कर लो हमारी properties को. I worked with Piccadilly Group, then I worked with this Haveli Group. It's a famous restaurant chain of Punjab, North India, the biggest chain. So I joined them as a general manager and I was looking after the production as तो slowly फिर अब as a GM I was working, I was handling operations, but 50% टाइम मेरा किचन में होता था. I used to make recipes, I used to control their flavors, their taste and develop recipes also. So this is how I started. My last job was with Haldiram's company, India, and this Delhi region. So Delhi was the head office for that. So I was general manager there. Again, I was general manager there, but I was acting as a chef over there. So we used to make the recipes, we used to develop the SOPs, how to make chaat, how to make bhatura, how to make. So that was my end of my job career in 2010. So 2010 till 2010, I had very good experience in the Indian cuisine, Conti cuisine and Oriental also, because it was all the part of that. And sweets also. I got very good experience from Haldiram's in 3 years in Indian sweets. I worked very hard on Indian sweets also. And then I left in 2010 and I started my own company, Core Hospitality. And immediately I started with the consultation to, again, all the highway joints, all the major sweets companies of India, you can say, from South, Bangalore, Hyderabad, Rajasthan, Jodhpur, Gwalior, and this Punjab region. So I have all good sweets companies on my panel. I'm consulted with them since 2011. And all the highway joints, good highway joints from Delhi till Amritsar. So this is about my journey, which I just shared with you. And I started my own studio in Mohali, Chandigarh, where we train chefs with all the expertise in world cuisines. We train chefs in Italian, in Spanish, Lebanese, Conti, all the major world cuisines which we used to cook or used to put in the menus in cafes nowadays. So you know, today cafes have a North Indian menu, they have Punjabi cuisine that they put better, more, and have Oriental, they have
Thai curry, they have continental, they have good range of sandwiches. So nowadays my 50% business is in the cafes. So I'm doing this cafe business. I'm setting up the cafes from layouts to the launch. So in last 7 or 8 years, I developed very good skills in the layouts and all. But I'm not an architect, but I started making drawings in the graph copy, and now I make very good layouts, and I even guide architects also in making kitchen layouts and all, but to providing the full solutions. So this is about me, and my forte is Indian cuisine. My forte is Indian sweets, Indian chaat, and I love to cook Italian, Spanish, and Lebanese. That is again has become my forte because I work a lot on these cuisines. So I spent good time in Spain and Germany also to learn these cuisines. I spent 1 week from Munich to Salzburg, and I learned very good skills about pastas and all, which we don't see here because here is the Indian fusion in that. But I cook only Italian version. Will have the same pasta, same pizza, same salad which you get in Spain or Italy with the same ingredients because I buy the same ingredients for my studio. So I love to do authentic, whether it is Italian or Indian. So this is about my journey and a little small story. Yeah, chef. तो शेफ आपकी बहुत सारी जो जर्नी है has been divided into different parts. पहले QSR से, क्विक सर्विस रेस्टोरेंट से, फिर टूवर्ड्स होटल से, फिर एक एंटरप्रेन्योर जो कि यू हैव स्टार्टेड योर ओन, क्योंकि आपकी स्ट्रेंथ्स जो है बहुत सारी थी, लेकिन इन स्ट्रेंथ्स के लिए बहुत सारे चैलेंजेस भी होंगे। तो उन चैलेंजेस के बारे में अगर बात करें कि क्या क्या चैलेंज आए आपको जब आपने शिफ्ट किया, और जब भी डिफरेंट एज यू मेंशन कि यू आर गुड इन इंडियन और उसके साथ साथ में मास्टरी इन यूरोपियन कुजीन्स, एक अलग जायका चला जाता है उस चीज का। तो उसमें भी बहुत सारे चैलेंजेस थे, एज यू मेंशन वन दैट अवेलेबिलिटी ऑफ इंग्रेडिएंट्स। बट मैं यहाँ पे ये जानता हूँ कि जो प्रोडक्ट अगर कहीं नहीं मिल रहा तो वो शेफ विकास चावला की शेल्फ पे जरूर मिलेगा। तो ये सारे चैलेंज आपने और क्या चैलेंजेस थे जो आपने भी बहुत सारे फेस किए हैं ड्यूरिंग दिस जर्नी? सर चैलेंजेस तो बहुत फेस किए हैं बिकॉज आई वर्क फॉर मोर देन 8 years आउट ऑफ माय होम टाउन, माय फैमिली। इवन आफ्टर गेटिंग मैरिड आई स्पेंड गुड टाइम इन दिल्ली, इन पंजाब, out of my family, and used to visit my home 2 days in a week. 5 days I was in Delhi, in Haldiram's, you can say. So challenges were there definitely, and but major challenge was in learning on handling this old traditional Punjabi or this Indian sweets or chaat segment, because in this segment people are not skilled and not educated, और वो आपको ऐसे ट्रीट करेंगे जैसे कि you don't everything. तो उनके बीच में रह के काम सीखना, उनके बीच में रह के फर्स्ट आई लर्नड एवरीथिंग, देन आई होल्ड, मतलब आई हैड अ वेरी गुड होल्ड ऑन दैट cuisine. Then when I started teaching them on the same things, and I improved their skills also. So slowly in last 6-7 years, every kitchen, every sweets person, जितने भी अच्छे जो ग्रुप्स हैं जो स्वीट्स प्रोडक्शन करते हैं, जो शेफ्स के ग्रुप्स हैं, उनको कारीगर बोलते हैं हिंदी में यहाँ पे। तो वो सबको जब पता लगा कि हाँ ये तो सिखाने भी लग गया हमें, तो आई लर्न, फर्स्ट ऑफ ऑल आई लर्न, बट वो एक बहुत बड़ा चैलेंज था इन्हीं लोगों से सीखना। अब उन्हीं लोगों की चीज़ों को इम्प्रूव करना और उसमें फ्यूजन करना और उसको बेटर करना और उसी की फूड कॉस्ट करके उनको बताना भैया ये इतने रुपीस केजी आती है, व्हेन यू ऐड कैश्यूज, व्हेन यू ऐड रोज, व्हेन यू ऐड एसेंस और यू ऐड सैफरन। तो वो सारी चीज़ों को धीरे धीरे किया, बट सबसे बड़ा चैलेंज स्वीट्स और चाट सेगमेंट में था मेरे लिए। बाकी इफ आई टॉक अबाउट इटालियन और इंडियन कुजीन, अगर मैंने मेरी उस दिन बुक लॉन्च थी, वन मीडिया पर्सन आस्क्ड मी कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंडियन एंड पंजाबी और इटालियन, बिकॉज आई डू बोथ। तो मेरे हिसाब से कोई भी डिफरेंस नहीं है। यू जस्ट फोकस ऑन द इंग्रेडिएंट्स व्हाट यू आर यूजिंग एंड टेम्परेचर, यू नो आर कुकिंग एवरी, मतलब मोस्ट ऑफ द कुकिंग स्टार्ट्स फ्रॉम द हाई हीट एंड एंड्स अप एट द लोअर। जितना हम लो पे उसको एंड पे लेके जाएंगे उतना न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ती है उसकी। तो सेम इज about Italian also, मतलब मेरे लिए कोई फर्क नहीं पड़ता if I am making something in tomato base in Indian food gravy, तो मेरा थोड़ा कुकिंग टाइम बढ़ जाता है, बट सेम थिंग अगर मैं पास्ता में कर रहा हूँ वो कुकिंग टाइम डेफिनेटली कम है, बट आपकी फीलिंग्स और सेंसेस काम करने आने चाहिए, तो यू कैन बैलेंस बोथ द थिंग्स।
आपको उसमें बेसिल लीव्स डालना है, उसमें सॉल्ट और ऑलिव ऑयल के साथ सीजनिंग करनी है, इसमें आपको धनिया पाउडर और वो अदरक और मिर्च का बैलेंस करना है. तो आई डोंट फील एनी difficulty in handling Italian or Indian. Even I can cook Italian or Indian both in the different pans at the same time. Even then I don't get confused. When I invite guests at my studio, तो मेरे एक तरफ पास्ता बन रहा होता है, इधर नेपोलिताना पिज्जा बन रहा होता है, जो कि मैंने अभी लास्ट 2 साल में ही उसको पूरा एक्सपर्टाइज किया है प्रैक्टिस कर करके. तो आई मेक ऑथेंटिक नेपोलिताना पिज्जा विच वी develop the dough with only 1 gram yeast, which people they do over there. तो यहाँ पे we do more yeast to develop pizza base on in the shorter time, but I make my dough only after 24 hours. It take minimum 24 hours to 48 hours. तो अब पिज्जा भी बना रहा हूँ, एक तरफ पास्ता बना रहा हूँ, दूसरी तरफ आई मेक शामी कबाब और दाल मखनी मेरी सेट होती है. तो मतलब आई मेक ऑल द, बट आई वांट टू गिव माय गेस्ट ऑल काइंड ऑफ ट्रीट, ऑल काइंड ऑफ फ्लेवर्स एट वन टाइम. और आजकल हमने एक और सेगमेंट शुरू कर दिया है, पाव. आई एम वर्किंग ऑन पाव एंड आई विल बी लॉन्चिंग माय कंपनी इन 1.5 month व्हिच इज अराउंड पाव. पूरे इंडिया में जितने भी पाव मिलते हैं, वड़ा पाव, दाबेली, मिसल पाव फ्रॉम पुणे, और पाव भाजी, पनीर भुर्जी पाव फ्रॉम अमृतसर. तो आई एम डूइंग दैट दीज काइंड ऑफ 10 पाव डिशेस इन माय मेन्यू एंड आई विल बी लॉन्चिंग इन 1.5 month and would love you all to come to Chandigarh and have taste of that. अभी ट्रायल्स चल रहे हैं मेरे, you can come to my office also. तो my paos are always ready in my pantry, तो you must try these pav. तो अभी मैं पाव स्ट्रीट फूड में आ गया हूँ दोबारा से. बिल्कुल शेफ, आई हैव सीन दी पिक्चर्स, फोटोग्राफ्स. आपकी जो फोटोग्राफी है वो भी एक स्किल है अपने आप में. यू पुट लॉट ऑफ हार्ड वर्क कि इस फोटोग्राफी, इफ यू हैव टू लॉन्च एनी क्रिएटिव, तो उस पे भी छोटी छोटी चीजों पे आप बहुत ध्यान है. लाइटिंग यहाँ से आ रही है, इसके ऊपर फोकस होना चाहिए. और इट इज ऑल अबाउट SOPs विच यू मेंशन की स्टैंडर्डाइज ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं. तो व्हाट ऑल थिंग्स यू टेक केयर इन और व्हाट यू कीप इन माइंड व्हेन यू डेवलप ऑल दी SOPs. तो आप किन चीजों पे, बेसिक पैरामीटर्स पे ज्यादा फोकस करते हो? इन सभी लाइक वेंचर्स अलग अलग हैं, स्वीट्स का अलग है, फास्ट फूड के लिए अलग है, कैफेज के लिए अलग है, और तो फिर क्या क्या अलग अलग तरीके और पैरामीटर्स आप चूज करते हैं उसको डेवलप करने के लिए? See, since I told you that I do all kind of cuisines, तो SOP format should be defined. आपका SOP format कभी चेंज नहीं होता है. Like I am making a chart. तो हम चार्ट में हमारी SOP क्लियर होती है कि फॉर एग्जांपल आप दही भल्ला खाते हैं, आप इमीडिएट 2 मिनट में दही भल्ला खा के आ जाते हैं, बट उसके पीछे की जो वर्किंग होती है, आई जस्ट टेल यू टू मेक अ दही भल्ला प्लेट. फर्स्ट ऑफ ऑल वी सेट द वेट ऑफ द भल्ला. If bhalla is fried, तो it should be around 25 grams or 30 grams in between. फिर वो पानी सोक करने के बाद it is around 50 grams. I'm just giving you example कि कितनी वर्किंग होती है. तो वो भल्ला स्क्वीज करने के बाद फिर 40 grams रह जाता है. Then it is on your plate. 2 bhallas are with you 80 grams. You sprinkle 1 gram masala. Then you pour 15 grams your chutney, both chutneys, 15 gram, 10 grams like this. Then yogurt, उसको तो हम लेडल में सेट कर देते हैं एक SOP के अंदर कि हमने 2.5 लेडल डाला है, बट दैट इज अप्रोक्सीमेटली 180 ग्राम्स. तो एक एक चीज को ग्राम में लेके चलना पड़ता है. और आई नो कि पीपल दे कांट फॉलो दैट वेट ऑल द टाइम व्हाइल मेकिंग, फॉर एग्जांपल दही भल्ला आई एम टॉकिंग अबाउट, बट वी सेट देयर टूल्स. वो हम उनको लेडल ही ऐसी देते हैं कि वो लेडल को जब आप पूरा फिल करते हैं उसमें 60 ग्राम से ऊपर नहीं जाता है कभी. तो जब वो 3 लेडल डालेंगे तो ऑटोमेटिकली वो 180, 170, 190 के बीच में रहेगा, बिकॉज 10 ग्राम्स हार्डली मैटर्स इन अ डिश. अगर 180 का 170 ग्राम्स भी हो गया, 190 भी हो गया, तो हार्डली मैटर्स. 10 ग्राम्स योगर्ट इज नथिंग. तो दिस इज द मेथड हाउ वी मेक द SOPs. और सेम इफ वी टॉक अबाउट इंडियन SOPs, तो वी मेक डो. आपको पता ही है, आप भी बनवाते हैं, आटा मैदा डो बन रहा है, नान का डो बन रहा है, तो उसमें कितनी सूजी है, कितना बेकिंग पाउडर है, नान में कितना सॉल्ट है, कितनी शुगर है, कितना वाटर है. एंड देन वी आल्सो फिक्स टेम्परेचर आल्सो. व्हेन यू मेक अ डो, द वाटर एंड योर फ्लावर, उसका टेम्परेचर बिल्कुल एक होना चाहिए. बोथ शुड बी एट रूम टेम्परेचर. और यू कैन से कि 26-28 डिग्री पे अगर आप दोनों चीजों का डो लगा रहे हैं, आप रोटी का या नान का, तो इट विल गिव यू वेरी गुड क्वालिटी. तो उसको कितनी देर बाहर रखना है, कितनी देर फ्रिज में रखना है. व्हेन यू मेक अ ब्रेड, तो आप होटल रेस्टोरेंट में है तो आप इमीडिएट फ्रिज से उसको निकाल के, यू कांट मेक दैट चपाती. तो यू शुड एटलीस्ट गिव इट अ रेस्ट टाइम ऑफ 20 to 30 minutes अगेन टू कम एट रूम टेम्परेचर.
तो दिस इज हाउ वी मेक SOPs. फिर उन लड़कों की ट्रेनिंग होती है, देन वी कीप चेक ऑन देम. अब जैसे मैं किसी स्वीट्स चेन की या किसी फास्ट फूड की मैं बात करता हूँ, तो हमने उनको एक शीट बनाकर दी होती है. देयर इज अ शीट. अब उस शीट पे लिखा हुआ है कि वन दही भल्ला प्लेट इज अप्रॉक्स 280 grams एंड वन चाट इज 290 grams एंड टिक्की प्लेट इज 200 grams. तो वो मैनेजर्स को हमने एक शीट दी होती है, वेरी स्मार्ट शीट. आई जस्ट टेल यू, उस शीट के ऊपर लिखा होता है कि मतलब देयर आर 4 लाइंस फॉर एग्जांपल. ठीक है, अब यू हैव टाइम फ्रॉम मॉर्निंग 11 टू नाइट 11. तो पूरे दिन में कोई भी 4 टाइम पे यू मैनेजर विल डू मेंशन अ टाइम, फॉर एग्जांपल 11 AM. he will mention at random the list is given over there, the menu dishes. जो भी डिश पीछे किचन से आती है, he will put it on the weighing scale, he will tear the plate, जो प्लेट है उसको माइनस करके उसका वेट लिख देगा. तो वो दिन में 4 बार उस डिश को वेट करेगा. एंड वी ऑर्डर्ड दैट लिस्ट, वी ऑर्डर्ड दैट चेक लिस्ट. तो अगर वो वेट में ज्यादा कुछ ऊपर नीचे वेरिएंस आता है, देन वी कॉल दैट शेफ मेन शेफ और द डिपार्टमेंट शेफ. तो फिर उनको फिर इम्प्रूव करते हैं. तो दिस इज हाउ वी चेक to control the SOPs. So you should have that sheet in your kitchen. Even when I control big highway joints like dhabas also, I have very good dhabas on my panel. We call it dhaba, but they are very good Punjabi restaurants. Then they have seating capacity of more than 600. तो उनका इवन हम दिन में डो बॉल भी वेइंग स्केल पे रख के चेक करते हैं. इवन हम कुक चपाती जब स्टीवर्ड लेके जा रहे होते हैं, तो वी टेक दैट बास्केट एंड वी वेट दैट so that they should not be more than 80 grams if chapati is there. If butter naan is there, it's 150 grams. If plain naan is there, it should be 110 to 120 grams. So we control according to the sheet. So that sheet is to cross check. So this is how we can control the SOPs. So it's a science again. Yes. Thank you, Chef Vikas. मयूर सर, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जब भी करामात अपने प्रोडक्ट्स लॉन्च करता है, बहुत सारी SOPs हैं, जैसे शेफ ने कहा. यही चीजें वहां पे भी मैंने जब स्वीतल जी से बात की, उन्होंने भी यही बताया था. तो इट इज कॉमन कि एक जो थिंकिंग है, जो सोच है, एक जैसी है. और आप उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे कि जो प्रोडक्ट्स करामात के हैं उसमें जो SOPs होती हैं, क्या सिमिलर वे में डिजाइन की जाती हैं SOPs? जी, अभी ये जो प्रोडक्ट्स हैं बेसिकली इस सोच के साथ बनाए गए हैं कि जो मल्टी लोकेशनल आउटलेट्स हैं, तो उनको एक ऐसा बेस मिल जाए कि जो एफर्ट्स को बहुत रिड्यूस कर दे, कंट्रोल करे क्वालिटी को और एक कंसिस्टेंसी दे. तो ये SOP हमारे लेवल पे, प्रोडक्शन लेवल पे तो एक फिक्स्ड SOP है. सपोज टमाटर हमें अगर मंगाने हैं, तो पर्टिकुलर एक जो थ्रू आउट द सीजन एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड जो होता है उसमें ये टमाटर कल्टीवेट किया जाता है, जिसकी एक स्पेसिफिक ब्रीड है पूसा 4. तो वो ही टमाटर कंटिन्यूसली आता है ताकि क्लाइंट को थ्रू आउट एक कंसिस्टेंसी ऑफ अपीयरेंस, कंसिस्टेंसी ऑफ जो विस्कोसिटी, वो सब मिले. सो बेसिकली हमारे लेवल पे बहुत स्ट्रिक्ट नॉर्म्स के साथ ये SOPs बनाई जाती है कि प्रोडक्ट फ्रॉम द कल्टीवेशन टिल द इसका जो स्टोरेज से लेके उसका जो प्रोडक्शन. तो अगर टमाटर है तो उसकी एक स्पेसिफिक ब्रीड है, अनियन है तो उसकी एक स्पेसिफिक ब्रीड है, और वही ब्रीड को थ्रू आउट द ईयर यूज़ किया जाता है. तो एक हमारे लेवल पे तो स्ट्रिक्ट SOP है ही. US FDA प्रोडक्ट्स हैं ये सारे, एक स्ट्रिक्ट एनवायरनमेंट में बनाए जाते हैं. लेकिन इसके अलावा क्लाइंट लेवल पे हमारे जो शेफ्स हैं, कॉरपोरेट शेफ्स हैं, वो क्लाइंट लेवल पे भी SOP बनाते हैं कि अगर ये एक पर्टिकुलर सपोज रेड ग्रेवी है तो उसको यूज़ किया जाता है, तो कॉरपोरेट शेफ्स के साथ मिल के एक SOP डिज़ाइन किया जाता है, जिसमें जैसे शेफ ने बताया कि एक स्ट्रिक्ट नॉर्म्स के साथ एक चार्ट प्रिपेयर किया जाता है. तो एब्सोल्यूट बारबेक्यू या बारबेक्यू नेशन ऐसे एक मार्वलस एग्जांपल्स हैं कि जिनके 150 या 200 आउटलेट अक्रॉस इंडिया है. तो एक स्ट्रिक्ट SOP के साथ इन ग्रेवीज को यूज़ करके या हमारे मैरिनेशंस को यूज़ करके क्लाइंट को हमारी शेफ टीम एक SOP डिज़ाइन करके एक बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट अपने एंड यूजर्स के लिए बनाते हैं. सो सबसे इम्पोर्टेंट है कि एंड क्लाइंट
अपना जो कंज्यूमर है वो उस क्वालिटी को अप्रिशिएट करना चाहिए. सो बिल्कुल या सर. एसओपी इज मस्ट. और जैसे शेफ ने बताया कि स्ट्रिक्ट नॉर्म्स के साथ और इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है, तो सेम वे हम लोग भी करते हैं. बिल्कुल बिल्कुल. sir. थैंक यू मेहुल सर. बिल्कुल एसओपी शुड बी मस्ट, होनी ही चाहिए, क्योंकि स्टैंडर्डाइजेशन तभी की जा सकती है इसकी. शेफ विकास, मैं आपसे जानना चाहूंगा, शेफ, ऑथर और कंसल्टेंट, ये तीन है, लेकिन एक बहुत ही अच्छी चीज है कि आई गॉट चांस टू वर्क विद यू सो मेनी टाइम. चाहे वो प्रोफेशनल नहीं था, लेकिन कुछ लेवल्स पे वी हैव वर्क टुगेदर. और व्हाट आई फाउंड कि आप एक बहुत ही अच्छे रिसर्चर हैं, कि आप जब तक जो जो चीजें पैरामीटर्स आपने बोले, चाहे वो टेम्परेचर हो, चाहे वो टाइम हो, चाहे वो क्वालिटी ऑफ इंग्रेडिएंट्स हो, जब तक नहीं होते हैं तब तक आप शुरुआत ही नहीं करते हो. तो वो जो रिसर्च एलिमेंट है, ये कैसे आप में इतना डीपली आप इसको लेके चलते हैं इन तीन प्रोफेशंस में, डिफरेंट में? इतना डीपली लेके चलते हैं सर. सी, अगर कुछ भी हमें काम करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल उसके पीछे अगर रिसर्च नहीं है तो वेरी सून वी गेट फेलियर ऑन दैट. मतलब हमारा वो प्रोजेक्ट है वो फेल हो जाएगा, चाहे वो रेस्टोरेंट है, चाहे कैफे है, या कोई स्पेशलाइज कुजीन है. आई विल गिव यू एन एग्जांपल. अभी जैसे मैंने बोला कि आई एम कमिंग इनटू द पाव सेगमेंट, तो अभी ब्रांड लॉन्च कर रहा हूँ जिसमें पाव को हम अभी तो सैटेलाइट किचन से, क्लाउड किचन से विल गिव होम डिलीवरीज, एंड विल वेरी सून विल बी स्टार्टिंग एक्सपोर्ट ऑन दैट आल्सो इन अ फ्रोजन फॉर्म, क्योंकि वहाँ पे लोगों को ऑथेंटिक ये वड़ा पाव ये सब चीजें नहीं मिलती हैं. तो विल ट्राई टू गिव देम इन अ फ्रोजन फॉर्म एंड दे कैन थॉ एंड दे कैन just micro it and they can have it. But here we'll be giving in a fresh form. अब उस वड़ा पाव को डेवलप करना या दाबेली को डेवलप करना कितना टफ था, I'll just tell you. I am just working on the मसाला. जो दाबेली के अंदर एक फ्लेवर आता है, जो मसाला आता है, I am trying on that मसाला since last 1 year or 1.5 year. और मैंने वहाँ के जितने एक्सपर्ट्स हैं या जितने भी कोई एंटरप्रेन्योर्स हैं वहाँ के, जो ऑनर्स भी हैं रेस्टोरेंट्स के, उनसे बड़ी कोशिश की वो मुझे मसाला मिले. वो भेजते थे रेसिपी, आई ट्राइड सो मेनी टाइम्स, बट वो फेलियर रहा हमेशा. फिर आई गॉट अ चांस टू गो टू पुणे. तो आई स्पेंड गुड टाइम ऑन अ पुणे कार्ट, एक रेडी के ऊपर खड़े होकर. एक दिन पूरा दिन यही टेस्टिंग चलती रही मेरी, थोड़ी देर में. देन आई गॉट अ चांस टू विजिट औरंगाबाद आल्सो. अगेन ऑन द कार्ट आई स्पेंड गुड टाइम एंड मतलब ट्राई टू सेट फ्लेवर्स ऑन माई पैलेट कि इसको जाके डेवलप किया जाए. सेम इसी तरह से मैं अहमदाबाद भी गया. तो अब 1.5 साल लग गया मुझे उस मसाले को डेवलप करने में. और जिस दिन ये डेवलप हुआ, यू कांट बिलीव इट वाज एक्सीडेंटली डेवलप्ड, बिकॉज माय इमोशंस और माय फोर्स वाज देयर टू डेवलप दैट मसाला. तो जिस दिन वो हुआ, वो एक्सीडेंटली वो एक मसाला मैं उसमें डाल ही नहीं रहा था. 2 ऐसे स्पाइसेस थे मेरे, आई वोंट डिस्क्लोज द नेम क्योंकि बड़ी मेहनत से मिला अभी मुझे. तो वो एक्सीडेंटली उसमें डल गए, और वो जो फ्लेवर मैंने कुक किया उसको पोटैटो के साथ, वो फ्लेवर वही आ गए सेम. और आई वॉज जस्ट डांसिंग लाइक एनीथिंग, और घर पे वाइफ और माई सन वॉज देयर, और मैंने बोला वो मसाला मिल गया जो मैं 1.5 साल से ढूंढ रहा हूँ. तो वो मसाला मेरे को मिला 1.5 साल में. एंड देन आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन द पाव. अब जितना भी पाव दिल्ली से लेके पूरे पंजाब में मिलता है, आपने देखा होगा वो पाव में बहुत ज्यादा ग्लूटेन एडेड होता है, बहुत ज्यादा प्रिजर्वेटिव होते हैं, उसकी हाइट इतनी ज्यादा होती है पाव की, और उसकी जो लेंथ और विड्थ बड़ी कम होती है. और जो बॉम्बे में पाव चलता है दैट इज वेरी लो इन हाइट एंड इट्स गुड इन लेंथ एंड विड्थ. और उसका जो रेसिपी भी थोड़ा डिफरेंट होता है, उसमें शुगर भी नहीं होता है, बहुत लो लेवल होता है. तो वो पाव को भी डेवलप करते करते मैं अभी 6 महीने से उस पाव के पीछे पड़ा हुआ पूरा. एंड आई डेवलप द सेम पाव. और उस पाव के अभी 1 मंथ मुझे हो गया, मेरे ऑफिस में आ रहे हैं गेस्ट फ्रॉम हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, वो ट्राई कर रहे हैं. अभी कुछ बॉम्बे से गेस्ट आए तो उन्होंने पाव खा के बोला यार हमें ऐसा लग रहा है उसी रेडी पे खड़े हैं. तो आई एम हैप्पी टू शेयर विद यू दैट बहुत जरूरी है जुनून आपका पीछे होना. तो आई डेवलप द सेम पाव विच इज अवेलेबल इन मुंबई, आई डेवलप द सेम मसाला विच इज अवेलेबल इन गुजरात. तो वो दोनों चीजें ऐसी बनाई जो मैंने लाइफ में, क्या इस करियर में आते हुए भी और जर्नी में भी कभी बीच में सोचा नहीं हुआ कि मैं कोई मसाला बना लूंगा या मैं कोई पाव ऐसा डेवलप कर लूंगा, जो कि मेरा फोटे नहीं है. मतलब मैंने बेकरी में बहुत ज्यादा काम नहीं किया, लेकिन मैं उन शेफ्स को जो ज्वाइन कर रहे हैं या इस लाइन में आए हैं या जो ऑलरेडी 10 साल लगा चुके हैं, मतलब डोंट स्टिक टू वन कुजीन ओनली. आप 10 घंटे की जॉब कर रहे हैं, आप एक कुजीन में हैं तो करिए, लेकिन उसके बाद 1-2 घंटे कुछ अपना जो दायरा है, अपना सर्कल है, उसको बढ़ाइए. जस्ट work on other cuisines also, because other cuisines mein when you enter in other cuisines, so you learn a lot about your present cuisine also.
मैं इंडियन करता था, लेकिन जब मैं इटालियन और ये करने लग गया, मेरा इंडियन भी और इम्प्रूव हो गया। तो आई लर्न अ लॉट अबाउट टेम्परेचर्स एंड ऑल सो मेनी थिंग्स। तो मैंने अब इंडियन में भी कुछ ऐसी डिशेस बनानी शुरू कर दी जो मैं उन टेम्परेचर्स पे बनाता हूँ, जो स्पेनिश में हम बिल्कुल स्लो पे, बिल्कुल ऑयल्स के अंदर, अब ऑलिव ऑयल के अंदर उसको सिमर करते हैं, वो दैट इज उनके तापास एंड ऑल जो होते हैं। अब उसमें मैं इंडियन वर्जन भी कर रहा हूँ मैं। तो दिस इज हाउ यू कैन एक्सप्लोर ऑल cuisines एंड यू कैन डेवलप न्यू रेसिपीज आल्सो। यस, थैंक यू शेफ विकास। अभी एक और बात करें ऑथर की। अब ऑथर है, इतने टाइम के साथ में उस किसी भी चीज को शब्दों का रूप देना। तो यू हैव ऑथर्ड ए बुक, कुक विद मदर, कुक विद पंजाब, और जी। बहुत ही जो उसका कवर पेज है, मतलब वही जब देखते हैं तो इमोशंस जो हैं, जो पंजाबियत कह सकते हैं, वो उभर के आती है। तो बहुत ही अच्छा उस पूरी क्योंकि जब भी अगर पंजाब की बात करते हैं तो इट इज माँ बोली हो चाहे हमेशा माँ का रुतबा जो है सबसे पहले आता है। और आपने जो नाम ही बहुत अच्छा दिया बुक का, कुक विद मदर एंड कुक विद पंजाब, तो ये जो सोच कैसे आई उस बुक को लिखने की, और फिर क्या क्या उस बुक में यूएसपीज हैं जो डाली गई हैं, तो उसके बारे में थोड़ा बताएं। सर उसमें एक तो अगेन योर क्वेश्चन वाज द सेम कि आई गॉट इंस्पिरेशन फ्रॉम माय मॉम। वो उनके हाथ में कुछ ऐसी 8-10 डिशेज हैं जो हमें खिलाती हैं, वो इतनी सिंपल होती हैं और 4 मसाले डाले और डिश बन गई। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, अरबी बनती है, अरबी लोग प्याज टमाटर के मसाले में भी बनाते हैं। एंड देयर इज अ मतलब मिसकंसेप्शन यू कैन से कि लोग कहते हैं कि पंजाबी खाना मीन्स प्याज टमाटर से बनता है, खूब सारा तेल होता है। वो मैंने ब्रेक किया इस बुक के अंदर कि आपको अगर अनियन टमाटो नहीं, और पंजाबी कुजीन का अनियन टमाटो पार्ट नहीं है। यू कैन मेक अ गुड फूड विद ओनली जिंजर, ग्रीन चिली, सॉल्ट एंड टर्मरिक ऑल्सो। तो हमारे घर में एक अरबी बनती है, वो जस्ट उनको मदर कट करती हैं, उसको मस्टर्ड ऑयल में थोड़ा सा अजवाइन डालती हैं, अरबी को गिरती हैं, सॉल्ट एंड टर्मरिक, हल्दी डाल देते हैं, दैट्स इट। उसको सिमर करते हैं थोड़ा, और लास्ट में थोड़ा और सिम करके उसको ढक देते हैं, फिर उसको थोड़ी देर ओपन में पकाते हैं। वो नीचे से एकदम फ्रेंच फ्राइज की तरह क्रिस्पी हो जाती हैं। दैट इज माय फेवरेट डिश फ्रॉम माय मॉम। ऐसे ही उनका बढ़ता है। उनकी कुछ डिशेज हैं वो आई थिंक वो सब गॉड की ही एक ग्रेस होती है, जो किसी के हाथ में एक शफा होती है। तो वो कुछ डिशेज ऐसी बनाती थी, तो मेरे को माइंड में ये आया कि अब ये जो चीज हम बनाते हैं ये लोगों के घर में बननी चाहिए, नॉट ओनली इन पंजाब, साउथ में मेरे कई फ्रेंड्स हैं, वो कहते हैं यार अपने घर का खाना तुम्हारे बड़ा अच्छा है, इसको हमें सिखा। तो ये वहां से मेरे माइंड में आया। आई इनवाइटेड फ्यू गेस्ट फ्रॉम द साउथ, वो आए थे बैंगलोर से, तो उन्होंने बोला यार अपने घर के पराठे और ये सब अब हमें कैसे सिखाएगा। तो वहां से वो थॉट आया मेरे माइंड में 2 और 3 इयर्स बैक। तो आई देन स्टार्टेड वर्किंग ऑन दिस बुक। पहले पराठा से ही शुरू किया मैंने। यू विल सी 3 डिफरेंट काइंड ऑफ पराठास इन माई बुक। एक बेसन को हम थोड़ा सा डो बना के आटे के अंदर फिल करते हैं, एक बेसन को हम रोस्ट करके पंजीरी बना के फिर आटे में भरते हैं। तो 2-3 पराठास आर वेरी डिफरेंट। आप बनाएंगे, आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे, देन यू लव दैट रेसिपीज। अब उसकी स्पेशलिटी क्या, आप मेरे से पूछ रहे हैं कि बुक की, तो उसकी स्पेशलिटी सिर्फ ये है कि एक जब भी कोई रेसिपी बनती है ना, और चाहे वो यूट्यूब पे दिखा रहा है कोई, या फिर कोई बुक पे, या फिर ऑनलाइन उसको पब्लिश कर रहा है, तो उस रेसिपी को लिखने के पीछे जो माइंड में जो थॉट होती है, और जो सामने जो उसको पढ़ रहा है और उसको बना रहा है, उसके बीच में ना एक वर्ड मैं यूज करूंगा, बिटवीन द लाइंस। हर रेसिपी में एक बिटवीन द लाइन सीक्रेट होता है। सीक्रेट नहीं होता, या इंटेंशनली नहीं, अनइंटेंशनली कुछ रह जाता है। और लिखने वाला तो सोच के लिखता है कि मैंने पूरी रेसिपी दे दी, लेकिन जब बनाने वाला बनाता है, अगर वो एक्सपर्ट नहीं है या 50% लेवल से ऊपर उसकी कुकिंग स्किल्स नहीं है, 50% मैं बता रहा हूँ, मतलब हमारे अगर शेफ को मैं बोलूंगा 80-90% स्किल्स होते हैं, तो 50% इज जो नॉर्मल एवरेज बंदा है कोई, उसको खाना बनाना अच्छा आता है। आप जानते हैं बड़े से अपने फ्रेंड्स को जो घर पे वो कहता होगा कि मैं मटन बहुत अच्छा बनाता हूँ वीकेंड पे, या मेरे हाथ के पराठे खा के देखो, जबकि वो शेफ नहीं है। तो जो 50% अबव स्किल वाला बंदा है वो रेसिपीज को फिर भी बना जाएगा। लेकिन जो मैंने बुक में रेसिपीज पे काम किया है, वो मैंने जो बिटवीन द लाइन स्पेस है वो खत्म किया है। बार बार रेसिपीज को मैंने बनाया, उसको बनवाया लोगों से, फिर मैंने खुद सोचा कि अब मेरे को रेसिपी नहीं बनानी आती, अब इसमें कुछ ऐसी लाइन तो नहीं है जो मिस हो गई है, और मैं उसके बिना ये मेरा कहीं रेसिपी मोशन ब्रेक हो गया और वो रेसिपी कुछ और बन गई। तो मैंने उन लाइंस पे बहुत काम किया जो बिटवीन द लाइंस। तो आई कैन चैलेंज कि अगर किसी ने कभी कुकिंग नहीं की और वो थोड़ा बहुत हैंडल कर लेगा फ्लेम, और वो उसको रीड करके एकदम फॉलो कर ले, जस्ट टेम्परेचर भी लिखे हुए हैं, जब मेरी कोई रेसिपी शुरू होगी उसमें लिखा होगा मीडियम हाई, फिर उसको कब हाई करना है, कब मीडियम करना है, स्टेप बाय स्टेप। तो यू जस्ट फॉलो दैट रेसिपी एंड यू विल एंड अप विद ऑलमोस्ट 90% और 100% जो प्रोडक्ट आप अचीव कर लेंगे जो रेसिपी के अंदर है।
तो वो मैं ऑलरेडी ट्राई कर चुका हूँ विद अदर पीपल ऑल्सो. सो दिस इज द स्पेशलिटी ऑफ माई बुक कि आप वो सेम रेसिपी अचीव कर लेंगे. बिल्कुल, बहुत ही अच्छा एक थॉट प्रोसेस, बहुत अच्छा है कि आपने बहुत अच्छा बताया कि एक गैप रह जाता है जो, तो वो गैप नहीं छोड़ा है. यू हैव डेवलप्ड यूएसपी, फिर बहुत ही अच्छी यूएसपी है कि एक कनेक्शन भी बना रहेगा और सेम सिमिलर लेवल पे, चलो 19-21 हो सकता है लेकिन वो वही चीज सामने आ जाए. तो ये बहुत ही अच्छी सोच है. और अब मैं चाहूंगा कि बहुत सारे यंगस्टर्स हैं, दे आर इनटू दिस प्रोफेशन, जो बडिंग प्रोफेशनल्स हैं, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि वो किस सोच के साथ आगे बढ़ें? लॉट ऑफ लाइक वी हैव सीन दिस लॉकडाउन पीरियड आल्सो, बहुत सारी हॉस्पिटैलिटी काफी लो उस पे चली गई और फिर से दोबारा वी आर रिवाइविंग बैक. लेकिन अब क्या एक मैसेज जो है वो शेफ विकास चावला कह लें या इन पर्सन विकास चावला जी क्या कहना चाहेंगे उन यंग बडिंग शेफ्स को? I would just like to say कि whichever you are in whichever trade or whichever line, अगर आप हॉस्पिटैलिटी में आ चुके हैं, शेफ ज्वाइन किया है और एचएम ज्वाइन किया है, जस्ट डू इट विद योर हार्ट. सारी बात दिल पे आके रुकती है. अगर आपका हार्ट और आपका माइंड, आपका ब्रेन, अगर वो दोनों सिंक होके काम नहीं करेंगे तो आपका बात बनेगी नहीं. चाहे आप पायलट बनना चाहें या फिर शेफ बनना चाहें या कुछ भी, किसी भी प्रोफेशन में जाएं, तो आपका जो हार्ट है और वो ब्रेन आपका कई बार सिलेक्शन कर लेता है कि प्रेशर में आके पेरेंट्स बोल रहे हैं अभी +2 होगी, अब तो कुछ तो कर, तो वो फिर सर्च करता है गूगल पे. वो बच्चा कहेगा कि चलो आईएचएम आज की डेट में कर लेते हैं. लोग आईएचएम वाले बड़ा खाने को भी मिलता है, वहाँ पे बुफे भी मिलते हैं खाने को और घूमने फिरने को मिलता है 5 स्टार में. मैक्सिमम मैंने कई बच्चों से सुना, तो मैंने उनसे ये सुना, मैंने कुछ स्टूडेंट से, कि हमें ये लाइन बड़ी अच्छी लगती है जी, बहुत 5 स्टार में घूमने को मिलता है. मैंने कहा यार अगर आप ये सोच के आ रहे हो तो सक्सेस नहीं है. तो वो ग्लैमर आप सामने से जो देख के आ रहे हो, जब आपकी स्टार्ट होगी ना तो वो काफी बैक से होगी, और काफी जब बैक ऑफ द एरिया से स्टार्ट होगी तो वो ग्लैमर एकदम यू टर्न हो जाएगा आपका. तो इफ यू हैव पैशन यू एंटर दैट लाइन. ठीक है, अगर आप शेफ लाइन में आ गए हैं तो जितने भी आप बड़ी शेफ्स हैं, यू जस्ट फोकस ऑन योर वर्क, ऑन योर क्यूजीन. ठीक है, आपको बाहर के काम भी करने हैं, आपको यूट्यूब पे भी प्ले करना है, फ्रेंड्स के साथ गॉसिप करना है, घूमना फिरना है, बट इफ यू वांट टू स्टे इन हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री जस्ट फोकस ऑन योर वर्क. बाकी काम तो मैं फिर भी कहता हूँ थोड़ा इधर उधर होके चल जाते हैं दूसरी टाइम पे, ज्यादा दूसरे कामों में ज्यादा घूम फिर के, बट हमारी लाइन में अगर आप पूरा फोकस नहीं करेंगे तो आप बहुत पीछे रह जाएंगे. मे बी योर एक्सपीरियंस इज 20 years, बट हो सकता है अभी जो फ्रेशर भी है अगर उसने पूरे ध्यान से काम दे दिया वो 3 साल में आपसे ऊपर हो जाएगा एकदम, इन द सेम होटल ऑल्सो. तो जस्ट फोकस ऑन योर वर्क और जो भी करें दिल से करें और अपने से ज्यादा करने की कोशिश करें. डोंट थिंक कि आपको एग्जीक्यूटिव शेफ ने या किसी ने आपको एक ड्यूटी दे दी है, यू आर इन कॉन्टिनेंटल डिपार्टमेंट और आपके लेफ्ट राइट में ओरिएंटल और वो भी हैं, तो उनको रिक्वेस्ट करो कि सर अगर मेरे पास काम नहीं है मैं उसमें कर लूँ, ओरिएंटल में कर लूँ या तंदूर पे चला जाऊँ, और अगर टाइम नहीं है देन मेरे को प्लीज अलाउ करिए कि मैं अपनी ड्यूटी के बाद 2 घंटे और कर लूँ. अगर आप लॉन्ग आवर्स ड्यूटी नहीं कर रहे हैं, अगर आपकी बॉडी अलाउ करती है तो यू मस्ट डू दैट जॉब. एंड मैंने तो ऐसे भी टाइम देखे हुए हैं कि व्हेन आई वाज ऑन ऑफ, तो मैं अपनी वीकली ऑफ छोड़ के भी मैं दूसरे डिपार्टमेंट में सीख लेता था काम, क्योंकि वही एक टाइम है स्टार्टिंग के 5 और 10 years व्हेन यू लर्न एवरीथिंग, क्योंकि उसके बाद आपका एक सेगमेंट सेट होता जाएगा, फिर आप दूसरे में एंटर नहीं कर पाएंगे. ओनली इन दिस स्टार्टिंग 4 और 5 years यू कैन लर्न एवरीथिंग. उसके बाद यू कैन जस्ट ग्रूम इन डिफरेंट क्यूजीन्स आल्सो. हाँ, मुझे चांस ज्यादा क्यों मिला? बिकॉज आई लेफ्ट, आई टुक अ रिस्क. मैंने जॉब छोड़ी दिल्ली से क्योंकि बिकॉज माई फैमिली वाज अलोन, और आके आई स्टार्टेड माई कंसल्टेशन भी वर्ड उसमें मुझे नहीं पता था कि कंसल्टेंट क्या होता है. मेरे को ये था कि ठीक है अभी मैं 1-2 ग्रुप्स को ग्रूम करना शुरू करता हूँ, उनके साथ मैं एक वेजिस पे ज्वाइन करता हूँ कि चलो आई विल गिव देम 5 days in a week, 6 days in a week, मैं जाके स्टार्ट करता हूँ, आई विल स्टार्ट वर्किंग विद देम. तो वैसे मेरा कंसल्टेशन शुरू हुआ धीरे धीरे, स्लोली आई डेवलप्ड वेरी गुड लेवल इन कंसल्टेशन आल्सो. तो बस जो भी करें फोकस से करें, यू विल डेफिनेटली गेट. आप पीछे पड़ जाए तो आपको सब मिल जाएगा जी. थैंक यू जी, थैंक यू शेफ विकास. सर शेफ थोड़ा 1-2 क्वेश्चन मैं शेफ से पूछना चाहता हूँ प्लीज. शेफ आपने अपने सारे कंफर्ट जोन तोड़े हैं, यानी सबसे पहले आईएचएम किया, आईएचएम करने के बाद आपने जॉब ज्वाइन की, जॉब ज्वाइन करने के बाद ड्राइवर, माय फर्स्ट जॉब वाज एज अ ड्राइवर.
तो ये सारे जो कंफर्ट जोन तोड़े हैं, तो ये इस तोड़ने के पीछे ये भगवान की प्रेरणा थी या फिर कोई इंस्पिरेशन था या होता चला गया सब कुछ? सर ये भगवान की तरफ से ही होता है जो भी होता है, लेकिन वो होता तब है अगर आप चाहें। भगवान की तरफ से हमेशा दो मैसेज होते हैं। लोग कहते हैं ना हमारे साथ बड़ा बुरा हुआ, वो बुरा नहीं होता कभी। वो डिसीजन भगवान ने हर एक के आगे दो दिए होते हैं। अगर आप बुरे वाला सिलेक्ट करेंगे तो आपके साथ बुरा हो जाएगा, आप ये वाला करेंगे तो आपके साथ अच्छा होगा। भगवान ने दोनों ऑप्शन दे दिया आपको। वो उस टाइम पे हमारे को वही ब्रेन और हार्ट सिंक करके वो डिसीजन लेना है। अब मैं ड्राइवर हो सकता था, मैं ड्राइवर छोड़ देता, लेकिन मुझे ये था कि मैं ड्राइवर से मैं काम करके दिखा दूंगा और मैं मे बी आई लर्न इंटरनेशनल लेवल पिज्जा। मैं हाथ से पिज्जा बनाना सीख जाऊं। मेरे हाथ में उसमें पिज्जा का बहुत एकदम था कि आई वांट टू लर्न पिज्जा, और वही उस टाइम का पिज्जा सीखा हुआ है 1 साल। वो 1 साल मैंने पिज्जा बनाया था। फिर ये 97 की बात है, 98 में लेफ्ट माई जॉब। उसके बाद मैंने 2018 19 ईयर्स तक मेरे को पता ही नहीं पिज्जा मैंने हाथ भी नहीं लगाया कभी। आई वॉज इनटू इंडियन क्यूजीन, आई वॉज इनटू स्वीट्स एंड ऑल। अब 2018 से मैंने जब मेरा स्टूडियो बना 19 में, मैंने अवन मंगवाया। अब 1 साल से वही जो उस समय मैंने थोड़ा प्ले किया था, उस प्ले करते करते अब मेरी पूरी एक्सपर्टीज हो गई है पिज्जास के अंदर। नाउ आई ट्रेन शेफ्स इन रेस्टोरेंट्स आल्सो टू मेक गुड पिज्जास, हैंड टोस्ट पिज्जास, थिन क्रस्ट पिज्जास। तो वो उस टाइम पे जो 20 साल पहले मैंने काम किया था, आज काम आ गया। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप जो भी करें आप सीखते जाएं, वो पता नहीं कब आपके हाथ काम आ जाएगा। तो दिस इज हाउ। अच्छा शेफ, एज ए कंसल्टेंट आपके क्लाइंट्स के आपके पास से क्या एक्सपेक्टेशंस होते हैं? एवरीथिंग सर। मतलब क्लाइंट, मेरे कुछ क्लाइंट्स तो ऐसे हैं जो मेरे साथ पिछले 10-12 साल से हैं, और बाय गॉड ग्रेस या उनसे मुझे जो एनर्जीज मिली मैं उनको वो दे पाया, वो आज भी फैमिली मेंबर की तरह है। मतलब 12-12 साल हो गए। मेरे क्लाइंट्स ऐसे भी हैं जिनके 4-4, 5-5 मैं आउटलेट्स ओपन कर चुका हूँ। तो एक्सपेक्टेशन उनकी यही होती है सर कि सिर्फ वो चेयरमैन या एमडी की सीट पे बैठे हैं। अदरवाइज वो मुझे कहते हैं कि बस मैं बैठा हूँ। मेरे कुछ क्लाइंट ऐसे हैं, मैं अभी नाम लेने को तो ले दूं बट कोई फायदा नहीं, वो जस्ट डिस्कशन लंबी हो जाएगी। वो सिर्फ ये कहते हैं कि चेयर पे तो मैं बैठा हूँ, बस समझ लो कि यू आर एमडी और सब कुछ आपको करना है। अब सब कुछ में क्या होता है कि मैं एज ए प्रोफेशन, एज ए जो मेरा प्रपोजल है, वैसे तो मैं रेस्टोरेंट लॉन्च कर रहा हूँ, मेरे को सिर्फ रेस्टोरेंट के लेआउट देने हैं, मुझे ये बताना है। लेकिन जब वो कहते हैं जी मेरी चेयर पे समझ लो आप बैठे हो, तो फिर वो उनकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज मेरे पे आ जाती है। इवन उनके जो घर के भी कुछ काम होते हैं वो भी मुझे मिल जाते हैं। किसी के घर पे कुछ किचन नहीं सेट हो रही, वो भी मेरे को घर से फोन आ जाता है कि हाँ जी वो सेट करा दो जी। तो फिर मेरा जो रोल है वो बहुत बड़ा हो जाता है। तो आई गेट ऑल काइंड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज फ्रॉम फ्यू ऑफ माई क्लाइंट्स। मैं उनके सारे काम करता हूँ, और आई नेवर लुक ऑन द फीस स्ट्रक्चर कि मैंने तो फीस प्रोजेक्ट की ली है। तो आपको वही कह रहा हूँ ना, दिल से काम करना है जो भी करना है, तो यू गेट एवरीथिंग। अच्छा, और शेफ आपने एक हाई यानी बेसिकली आपकी जो कंसल्टेंसी है वो पूरा हाईवे एरिया ही है या इसके अलावा भी काफी ब्रांड्स के साथ जुड़े हुए हैं? I consult all the good Indian sweets brands. ओके, गुड। हाँ, मैंने सिटी बताई थी आपको, राजस्थान से लेके ग्वालियर से, आगरा से, हैदराबाद, इवन गुवाहाटी, असम पूरा किया हुआ है, पंजाब, हिमाचल और हरियाणा। ये सब में मेरे जितने भी आप जिसको भी गूगल पे डालेंगे, जो भी स्वीट्स का ब्रांड ऊपर आएगा, दैट इज माय क्लाइंट। मतलब क्योंकि हर सिटी और हर स्टेट में 1 या 2 ब्रांड लीड करते हैं, वो सारे मेरे क्लाइंट्स हैं। इसके अलावा बेकरीज कुछ की है मैंने अच्छी, और हाईवे के जितने भी रेस्टोरेंट्स हैं फ्रॉम मुरथल टिल अमृतसर, वो almost they all are my clients. I work for them. I work on food quality for them. I make layouts for them. वो नए लेआउट, कोई नए प्रोजेक्ट आते हैं तो मैं सिर्फ लेआउट्स दे देता हूँ, बिकॉज फूड और स्टाफ सब सेट होता है कुछ प्रोजेक्ट्स में। तो पहला सेगमेंट मेरा स्वीट्स का है, दूसरा ये है, थर्ड इज विच इज माय फेवरेट, दैट इज कैफे। आई लव टू डू ऑल क्यूजीन्स अंडर वन मेन्यू एंड वांट टू डू फ्यूजन इन सम डिशेस, लाइक वड़ा पाव को भी देना है तो कैसे फ्यूजन में देना है, अब दाल मखनी को अगर किसी कैफे में देना तो वो कैसे प्लेटर बना के देना। तो आई वर्क ऑन प्लेटिंग ऑल्सो। So I love to do good plating. I keep on learning good plating from international chefs also. I follow Jamie Oliver, I follow Ramsay, मतलब I follow lot of chefs. तो मैं फ्री टाइम में मैं वो यूट्यूब्स और वो सॉन्ग्स नहीं सुनता, मैं फ्री टाइम में उनकी वीडियोस ही देखता रहता हूँ। This is how I. So nice, chef. Thank you so much, chef. Please, chef. Chef Arinder.
Yes, chef. Thank you so very much for being the part of this show, culinary journey of a chef. और करामात और फूड सॉल्यूशंस इंडिया लिमिटेड की तरफ से मैं आपको तहे दिल से शुभकामनाएं देता हूं कि आप और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स करें और यूं ही जो अपनी लर्निंग है शेयर करते रहें और हमारे साथ जुड़ें। और थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू मिस्टर मयूर आल्सो। Thank you. Thank you so much. Thank you so much for a wonderful show. Thank you. Thank you all.